Once again, we welcome you all in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. और आप सभी का स्वागत करते फिर से और एक बार यीशु मसीह के महान नाम से। I believe that all are doing well this morning, and we have come and gathered together as the disciples and as the sons and the daughters of God. विश्वास करता हूँ कि इस सुबह आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और हम फिर से एक बार इकट्ठा हुआ है, जैसे प्रेरित इकट्ठा होता है, जैसे परमेश्वर के बेटा और बेटा इकट्ठा होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। As today we are taking the communion. और जैसे आज हम प्रभु भोज को लेने जा रहे We are हैं celebrating the communion Sunday. और हम प्रभु भोज के इतवार को हम मना रहे हैं। We celebrate the death, burial and resurrection of Christ. और यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, फिर से जी उठने का हम मनाते So हैं। this morning get ready for the word of God. और इस सुबह तैयार हो जाओ परमेश्वर के वचन के लिए। Tell your neighbor इस सुबह तैयार हो जाओ परमेश्वर के वचन के लिए। बाजू वाले से कहेंगे इस सुबह तैयार हो जाओ परमेश्वर के वचन के लिए। Amen. Amen. When we prepare our hearts for God, जब हम अपना हृदय परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं, the word of God works into our life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। If you don't respect the word, अगर आप वचन का आदर नहीं करोगे, if you don't respect the anointing, अगर आप अभिषेक का आदर नहीं करोगे, the day is going to come दिन आएगा where you will be scattered, जहाँ पे आप ऐसे बिखर जाओगे, where you will be separated from the word. वचन से आप अलग हो जाओगे। I want to tell you this morning मैं कहना चाहता हूँ इस सुबह that we need to understand why we take the communion, what is the truth behind the communion. और हम ये समझेंगे कि प्रभु भोज को क्यों लेते हैं और सच्चाई क्या है प्रभु भोज के पीछे, And what is the teaching that God is going to give this morning. और वो शिक्षण क्या है जो परमेश्वर देना चाहते हैं इस सुबह। Amen. Amen. Let us turn to the book of Acts chapter 2. और हम जाएंगे प्रेरितों के काम किताब में दूसरा अध्याय Verse 42 to 46. और 42 वचन से हम पढ़ेंगे। Everybody please open your Bible. और सभी लोग अपने बाइबल को खोलेंगे। Don't think I'm not physically present. God is watching, and through this broadcast God is talking to us this morning. और ये मत समझना कि मैं नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन परमेश्वर सभी को देख रहे हैं। इस ब्रॉडकास्ट के द्वारा परमेश्वर सभी से बातें करने जा रहे हैं। Come on, let's turn to Acts chapter 2. और हम जाएंगे प्रेरितों के किताब में दूसरा अध्याय 42वां वचन। Yes, verse 42. We will read it together. 42 वचन से हम पढ़ेंगे। They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of the bread and to prayer. और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। लौलीन रहे. Tell your neighbor लौलीन रहे. बाजू वाले से कहेंगे लौलीन रहे। Tell your neighbor the disciples devoted themselves. The disciples चेले were inclined to the teaching of the apostles. और वो प्रेरितों की शिक्षा में जुड़े हुए थे। Hallelujah. Hallelujah. We are the disciples. हम परमेश्वर के चेले हैं And we are inclined to the teachings of our chief apostle Jesus Christ. और हम हमारे यीशु मसीह जो प्रेरित है उसके शिक्षा में हम जुड़े हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। They devoted themselves to the apostles' teaching. और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में संगति रखने में और रोटी तोड़ने में हाँ. और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। Yes, lowline रहे. Devotion, committed. और लौलीन रहे। What is the meaning of lowline? What is the meaning of commitment? लौलीन का मतलब क्या है? Lowline means you are devoted, you are committed to the teachings, you are committed to following the teachings of Christ. और लौलीन का मतलब ये है कि आप यीशु मसीह के शिक्षण की ओर आपने अपने आप को सौंप दिया है। 4 things the disciples did. और 4 चीजें जो ये चेलों ने कही। बोलो बाजू वाले को उठा के बोलो 4 चीजें जो चेलों ने की क्या? 4 चीजें जो चेलों ने की। And that's where they got the breakthroughs in their life. और वही पर उनको विजय आशीर्वाद मिला अपने जीवन में। Number 1, पहला, they committed themselves or they devoted themselves to the apostles' teachings. और पहला तो है प्रेरितों के शिक्षा में वो अपने आप को लौलीन रहे। Why are we coming to the house of God? हम परमेश्वर के घर में क्यों आते हैं? Are we coming to see each other's face? और क्या हम एक दूसरे के चेहरे को देखने आते हैं? Are you coming to gossip? और क्या हम यहाँ की बात वहाँ करने आते हैं? Are you coming to seek help from man? और क्या किसी मनुष्य से हम मदद मांगना चाहते हैं? Why are we coming to the house of हम God? क्यों परमेश्वर के घर में आते हैं? Many people, they are coming to the house of God, but they are not taking back anything with them. और बहुत सारे लोग परमेश्वर के घर में आते तो है, लेकिन वो फिर से अपने पास साथ कुछ नहीं लेके जाते हैं। You know why they go empty-handed? और वो क्यों खाली हाथ जाते हैं? Because they run. क्योंकि वो भागते हैं। As soon as the service gets over, और जैसे सभा खत्म होती है they run. वो भाग जाते Number हैं। 1, I want to tell you about पहला मैं कहना चाहता हूँ the disciples चेले with all their heart devoted themselves to the apostles' teachings. और पूरे अपने दिल के साथ प्रेरितों के शिक्षा में वो लगे रहे, लौलीन रहे। Till we do not commit ourselves to the teachings of Christ, और जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के जो शिक्षण है उसमें हम बांधते नहीं हैं, till we do not commit our life, commit our lifestyle to walk
according what the Bible says, और जब तक हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को हम परमेश्वर के वचन के साथ हम चलते नहीं हैं, no breakthrough. कोई विजय आश्रम Tell your neighbor, जब तक तुम शिक्षण की ओर नहीं चलोगे, तुम शिक्षण की ओर नहीं चलोगे, तब तक कोई विजय आश्रम नहीं होगा. कोई विजय आश्रम नहीं होगा. Hallelujah. Hallelujah. Till you don't commit yourself what is being taught every Sunday, if you are not committed to follow it, no breakthroughs. और जब तक हर इतवार को जो सिखाया जाता है, जब तक आप उसमें अपने आप को सौंपते नहीं हो, कोई विजय आश्रम नहीं होगा. Number 2, if you read it, और दूसरा जब आप पढ़ोगे, first of all, they committed themselves to the teachings of the apostle, and number 2, to the fellowship. पहले बात तो उन्होंने प्रेरितों के शिक्षण में अपने आप को लोलीन किया, अपने आप को सौंपा. हाँ. और दूसरा चीज है संगति. Yes, you just read the whole thing, verse 42. और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, Yes. और संगति रखने में, और संगति रखने में, the second important part of a believer's life, और दूसरा महत्वपूर्ण भाग एक विश्वासी के जीवन का, is the fellowship. वो है संगति. Tell your neighbor, संगति रखना है. बाजू वाले से कहेंगे संगति रखना है. क्या रखना है? संगति रखना है. Yes, the fellowship. संगति. Now this is where God wants to correct us this morning. अभी यही है, वह परमेश्वर हमें सही करना चाहता है इस सुबह. Fellowship, but what kind of fellowship? संगति, लेकिन किस प्रकार की संगति? Do you want to keep fellowship with the drunkards? और क्या पियकड़ों के साथ आपको संगति रखना है? Do you want to keep fellowship with people who commit adultery? और जो वे विचार करते हैं, क्या उन लोगों के साथ आपको संगति रखना है? Do you want to keep fellowship with people who are walking away from God? और क्या उन लोगों के संगति रखना है जो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं? What kind of fellowship? Here the fellowship, the word is, but what kind of fellowship do we have? यहाँ पर संगति शब्द तो है, लेकिन किस प्रकार की संगति की बात कर रहे हैं? The people that you have fellowship with, it is the same thing, it will the same anointing that will come upon you. और जिस लोगों के साथ आप संगति में हो, वही प्रकार का अभिषेक, वही प्रकार का चीजें आपके ऊपर आएगा. The people that you spend more time with, you become like that. और जिस लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हो, वैसे ही रहोगे. So this morning I want to ask you, इस सुबह मैं पूछना चाहता हूँ, what are the kind of people that you have fellowship with? और किस प्रकार के लोगों के साथ आप संगति करते हो? You know why the church is made? Why we call as a church? और आपको पता है कलीसिया क्यों बनाया गया है? हम उसे कलीसिया क्यों कहते हैं? Because all like-minded people who have accepted Christ as their Savior, we come together and worship the Lord together. क्योंकि जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जैसे एक मन होकर, एक आत्मा होकर हम परमेश्वर की संगति करने आते हैं. That's why we say keep the fellowship with the church people. और इसलिए हम कहते हैं कि कलीसिया के लोगों के साथ संगति में रहिए. But many of the church people, लेकिन बहुत सारे कलीसिया के लोग, I see मैं देखता हूँ that they are not walking with God. कि वो परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं. Why? क्यों? They are disconnected from the fellowship of the church. कलीसिया के संगति से वो दूर हो गए हैं. I am independent, me and my family. I will walk alone. I will do everything alone. I will not talk to anybody. I will not say praise the Lord to anybody. I will only keep काम से काम तुम्हारा काम तमाम in Jesus name. और मैं जो हूँ, मैं अकेला रहूंगा, मैं और मेरा परिवार, और मैं सिर्फ अकेला ही चलूंगा, मुझे कोई नहीं चाहिए, और मैं किसी को प्रभु की स्तुति प्रेज द लॉर्ड नहीं कहूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा. Fellowship is very important. Listen. संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है. सुनो. You think we are playing the fool? आप सोचते हैं कि हम यहाँ पे मस्ती मजाक कर रहे हैं? No. नहीं. You are making your fool of yourself. अपने आप का आप मजाक बना रहे हो. God created man to have fellowship. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया संगति करने के लिए. He created Eve with Adam to have fellowship. और उन्होंने हवा को आदम के साथ बनाया संगति करने Why के are we लिए. created by God? हम परमेश्वर से क्यों रचाए गए To हैं? have fellowship with Him. परमेश्वर का संगति करने के लिए. And why are we coming to the church? और हम कलीसिया में क्यों आते हैं? To have fellowship with the Father. पिता के साथ संगति करने के लिए. Many people think बहुत सारे लोग सोचते just हैं attending the church will do everything. और सिर्फ कलीसिया में आके बैठना वो हर चीज कर देगा. No, church, first of all, what is being taught in the church, follow that. और Learn to listen and listen to learn. और कलीसिया नहीं, लेकिन कलीसिया में जो सिखाया गया है वो उसके पीछे चलना सीखो. पहले सुनकर सीखना, सुनकर करना सीखो. Yes, many people only listen. बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते हैं. They don't activate what is being taught in the church. और जो कलीसिया में सिखाया जाता है वो उसे जागरूक नहीं करते हैं. Many people act like they are doing, but they are actually not doing और anything. बहुत सारे लोग ऐसे दिखावा करते कि वो कर रहे हैं, लेकिन सच में वो कुछ भी नहीं करते हैं. That is why today इसीलिए आज we are behind in our spiritual life. हम हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ही पीछे हैं. The reason that we are behind is because we do not act on the word. और कारण हम बहुत ही पीछे हैं क्योंकि हम वचन के ऊपर हम कार्य नहीं करते हैं. Number 2, the reason that we are behind, और दूसरा वो कारण जो हम पीछे हैं,
Because we do not have a fellowship with the right people. क्योंकि हमारे साथ हम सही लोगों के संगति नहीं है। You enjoy with the unbelievers. आप अविश्वासियों के साथ बहुत ही ऐसे आनंद मनाते हो, Oh, you enjoy with your colleagues. और अपने काम काज करने वाले लोगों के साथ बहुत ही आनंद मनाते हो। So happy you become when you meet your friends and family and relatives and everything. But when it comes to the people of God, you do not enjoy. There is something wrong. There is a demon that is inside you that is not allowing to have the fellowship with God. और जब अपने परिवार वाले आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, अपने दोस्त आते हैं, तो आप इतने ज्यादा खुश होते हो। लेकिन जब विश्वासी कलीसिया के लोग सामने आता है तो आप बिल्कुल भी उनके साथ संगति यानी बातचीत नहीं करते हो। लेकिन जब वो एक दुष्टात्मा है जो आपको संगति करने नहीं देता है, बातचीत करने नहीं देता If you है। cannot walk on the teachings of the Lord, you have a demon inside you. अगर परमेश्वर के शिक्षणों पर नहीं चल सकते हो आप, तो यानी कि आपके अंदर दुष्टात्मा है। Pastor ऐसा कैसे बोल रहे हैं? Whether you like it or you don't like it, if there is something that is wrong in your life, it is better to ask the Holy Spirit to take complete control and deliver you this morning. आपको अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे, लेकिन अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो पवित्र आत्मा से मांगिए और पूछिए कि आपको छुटकारा दे इस सुबह। Hallelujah. हालेलुया। Third thing, तीसरा चीज, to the breaking of the bread. और रोटी तोड़ना। Yes, verse 42. और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने हाँ। और संगति रखने में, संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, और रोटी तोड़ने में, और प्रार्थना करने में हाँ, लवलीन रहे। yes. Third commitment, breaking of the bread. और तीसरा वाचा वो है रोटी तोड़ना। Tell your neighbor, तीसरा जो कमिटमेंट है परमेश्वर का, वो रोटी तोड़ने का कमिटमेंट है का। Hallelujah. हालेलुया। Church, I cannot hear you from there. But in the spirit, आत्मा में I should be able to hear you. मैं आपको सुन सकता हूँ। Don't sit like a dumb this morning, but have be excited with the word of God, because the word of God is going to heal you and deliver you this morning. और ऐसे मूर्ख के समान मत बैठो, लेकिन आनंदित रहो क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको इस सुबह छुटकारा देने जा रहा है। Amen. Amen. Breaking of the bread. रोटी को तोड़ना। What is breaking of the bread? और रोटी का तोड़ने का मतलब क्या है? Before Jesus could go on the cross, और यीशु मसीह क्रूस में जाने से he had the पहले last supper with his disciples. और उनका जो आखिरी जो भोजन था उनके चेलों के साथ And he said, हुआ। take, eat, this is my body. और उन्होंने खा लो ये मेरा शरीर है। He took the bread, उन्होंने रोटी को लिया, gave it to the disciples. चेले को दिया, He didn't give it to anybody else. और उन्होंने किसी और को नहीं दिया। He said, do this in the remembrance of me. और उन्होंने कहा ये मेरे स्मरण में ये सब कीजिए। Whenever we eat the bread, जब हम रोटी को खाते हैं, remember the night that the Lord Jesus Christ was betrayed. और वो दिन को याद करो जहाँ पर यीशु मसीह को वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया गया था। Now shortly we will take the communion. अभी हम थोड़ी ही देर में प्रभु भोज को लेंगे। You know, when you have the bread in your hand, आपके हाथों में जब वो रोटी होती है, you should first think, Lord, am I worthy to take that bread? पहले तो आपको सोचना है क्या परमेश्वर में सचमुच योग्य हूँ The Bible रोटी को says, लेने के लिए। बाइबल कहता है Many people बहुत सारे लोग are weak, वो कमजोर है, are today in disease, और वो रोगी में पड़े are हुए today हैं, sick, बीमार है, because somewhere they have hurted the body of Christ. क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने यीशु मसीह के देह को चोट पहुंचाया है। If you read in the book of Corinthians, कोरिन्थियों की किताब में अगर it आप clearly पढ़ें, mentioned that साफ से लिखा है, do not take this bread in an unworthy manner. और ये रोटी को अनुचित रीति से मत लीजिए। Why? क्यों? Because Jesus himself broke the bread and gave to all the क्योंकि disciples. यीशु मसीह ने खुद ही रोटी को तोड़कर चेले को दिया। Many people, बहुत सारे लोग they commit adultery, वे विचार करते हैं, they have so much of bitterness, इतने कड़वाहटपन है उनके अंदर, they don't have a straight face with God, परमेश्वर के साथ सीधा उन खड़े नहीं रह सकते and हैं। still when you take the और communion, फिर भी प्रभु भोज को लेते हैं, what are you doing? आप क्या कर रहे You are हो? hurting the body of Christ. आप यीशु मसीह के देह को ठेस पहुंचा रहे Many हो। people think, अरे ये तो पाव है ना, पाव और जूस मिल रहा है। No, no, when we remember it, that bread becomes the flesh of Jesus. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो पाव ही है, लेकिन नहीं नहीं, हम अगर स्मरण करके खाएंगे तो सच में वो यीशु मसीह का शरीर है। So Jesus said, take this and do this in the remembrance of me. यीशु ने कहा उसे ले लो और मेरे स्मरण में करना। And take the cup, और वो प्यालों को लो, and the cup is the blood of Jesus, the covenant, the new covenant between God and us. और वो प्याला जो है वो यीशु मसीह का नया वाचे का प्याला है जो उन्होंने आप में और हमारे साथ बांधा है। Hallelujah. हालेलुया। So never take the communion in an unworthy manner. और कभी भी प्रभु भोज को अनुचित रीति से मत लीजिए। See, three things that devoted themselves, they committed themselves. Who committed themselves? The disciples, the new believers, they committed themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, and to the breaking of the bread. देखो तीन चीजें जो है वो चेलों ने सौंपा था। किस चीज के ऊपर सौंपा था? वो है प्रेरितों के शिक्षण पे, संगति में और रोटी तोड़ने में। Amen. आमीन। Are you understanding this morning? क्या आप समझ पा रहे हो इस? Fourth thing,
4 that चीजें, we need to commit our life चौथी चीज जो हमें हमारे जीवन को सौंपना है is prayer. वो है प्रार्थना। Tell your neighbor, प्रार्थना। प्रार्थना, हाँ, क्या बोलेंगे हम लोग? प्रार्थना। हाँ, prayer is a commitment. प्रार्थना जो है वो एक वाचा है। Prayer is not whenever you want you pray, whenever you don't want you pray, whenever you want when you are in need then you pray, when you don't need you don't pray. Prayer is not like that. Prayer is a commitment. और प्रार्थना का मतलब ऐसा नहीं कि जब आपको मन कहीं चाहिए तो अभी आप करो, जब ये इच्छा नहीं है तब आप मत करो, जब भी आप आराम से करना है करे नहीं, लेकिन प्रार्थना का मरना है। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के पास हम जब एक चीज को सौंपते हैं। Tell your neighbor, बाजू वाले से कहेंगे prayer is commitment. प्रार्थना एक वाचा है। Hallelujah. हालेलुया। Prayer is not when you want. पास्टर को बोलेंगे जब नहीं चाहिए यूज एंड थ्रो, ये डस्टबिन गिरी बंद करो। Prayer is walking straight in the presence of God. Whether you have, whether you don't have, you still pray. प्रार्थना का मतलब है सीधा परमेश्वर के इच्छाओं में चलना, और अगर आपके पास है या नहीं है लेकिन फिर भी आप प्रार्थना कीजिए। 4 things I want to tell you, church, this morning, that our life should be committed. और 4 चीजें जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन जिसको हम में से सौंपना चाहिए। To the apostles' teaching, प्रेरितों की शिक्षा पर, whatever is taught through the word of God, और जो परमेश्वर के वचन से सिखाया गया है, commit your life to it. और अपने जीवन को उस पर समर्पित कीजिए। If A is being taught and don't do Z, whatever is taught through the word of God, do that, you'll be blessed. अगर ए सिखाया गया तो अब जेड पर मत जाइए, जो भी सिखाया गया है आप उसे ग्रहण करो, आप आशीषित होगे। Number 2, दूसरा, our life should be committed to have fellowship with the right people. और हमारा जीवन जो है वो समर्पित होना चाहिए सही लोगों के साथ संगति करने के लिए। Number 3, our life has to be committed to the body of Christ, the breaking of bread. और तीसरा चीज परमेश्वर के देह के, और यानी कि परमेश्वर के लोग हैं, हमारा जो जीवन है वो समर्पित होना चाहिए। Number 4, रोटी तोड़ने में चौथा चीज, our life has to be committed in prayer. और प्रार्थना में हमारा जीवन समर्पित होना Come on, how many of चाहिए। you get up 5 a.m. in the morning and start praying? हम में से कितने लोग हाथ उठाएंगे, उठते हैं सुबह 5 बजे प्रार्थना करने के For लिए। people who are raising their hands, sometimes I cannot see you. I don't know whether you're getting up or not. और जो लोग ऐसे हाथ उठा रहे हैं, कभी कभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ आप लोगों को, आप उठते हो या नहीं प्रार्थना के लिए, मुझे नहीं पता। Prayer is not an option, it has to become your lifestyle. और प्रार्थना ये कोई चुनाव नहीं है, लेकिन आपको व्यक्तिगत जीवन हाँ, है। जब मन करे करेगा, जब मन करे सो जाएगा, जब मन करे उड़ जाएगा. It is not an option. Whether you live or you die, you get up in the morning and you will praise the Lord. और आपके पास कोई दूसरा चुनाव नहीं है, लेकिन आपको प्रार्थना या तो अब जियो या मरो, लेकिन फिर भी आपको प्रार्थना करना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Commitment, prayer is commitment. प्रार्थना का मतलब है समर्पित करना। Bible says pray for yourself, pray for one another, pray for the church, pray for so many things. How many of us are really praying for that? बाइबल कहता है अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए, राष्ट्र के लिए प्रार्थना कीजिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। हम में से कितने लोग ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं? पास्टर इधर खुद के लिए नहीं प्रार्थना, और हम दूसरों के लिए क्या करेंगे? That's why I'm saying you are spiritually very behind. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आत्मिक जीवन से आप बहुत ही पीछे हो। Spiritual life is a life full of sacrifice, आत्मिक जीवन पूरी तरह से त्याग बलिदान का जीवन है, not comfort. आराम वाला जीवन नहीं। People who want to be comfortable, you go sit in the chair, you increase your weight and पूरा मास जो पूरा है ना वो चेयर का शेप में आ जाएगा. You will be very comfortable. जो लोगों को बहुत ही आराम से रहना है, आप एक काम कीजिए, आप पूरी तरह से कुर्सी पर अच्छे से बैठ के पूरा मास जो है वो बाहर लाकर कुर्सी के आकार में उसे आप इतना बढ़ा दीजिए। जब भी when you get up, the whole stomach will be in the shape of chair. और जब आप उठोगे पूरा आपका जो आकार है वो कुर्सी के समान होगा। कोई आपके ऊपर आके बैठेगा. Prayer, spiritual life is full of sacrifice. और प्रार्थना जो है वो पूरी तरह से त्याग बलिदान का जीवन है। Many people take it lightly. बहुत सारे लोग बहुत ही हल्के में लेते A day हैं। will come. एक दिन आएगा We won't have any time. जब हमारे पास कोई समय नहीं होगा। Verse 43 it says, see, when you are committed in these 4 areas of your life. देखो जब ये जीवन आपके जीवन में 4 क्षेत्र में आप समर्पित रहोगे। Come on, what are the 4 areas? चलो बताओ ये 4 जो है वो कौन सी चीजें हैं? Number 1, पहला the teachings of Christ. प्रेरितों से शिक्षा। Number 2, दूसरा the fellowship. संगति। Number 3, तीसरा breaking of the bread. रोटी तोड़ना। Number 4, चौथा prayer. प्रार्थना। When we are committed in these 4 areas of our lives, और जब हमारे जीवन में हम इन 4 चीजों के ऊपर समर्पित करते हैं अपने आप को, verse 43 will happen. और अगला वचन हम पढ़ेंगे। Tell your neighbor, verse 43 is going to happen. बाजू वाले से कहेंगे जो 43 वर्ष है वो होगा आपके बोलो जीवन बोलो, में। बाजू वाले को हिलाकर बोलो, तेरे जीवन में प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय का 43 वचन होने वाला है का? और बाजू वाले से कहेंगे आपके जीवन में प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 43 वचन होने जा रहा है। Let us read what
is in verse 43 का? और आइए हम पढ़ेंगे। Yes. और सब लोगों पर भय छा गया हाँ। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। Hallelujah. हालेलुया। सब लोगों पर क्या आ गया? भय आ गया। Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the और apostles. सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। You're looking for your breakthrough? अपने विजय आश्रम के लिए आप रुके Looking हुए for हो signs and wonders and miracles? और आप चिन्ह चमत्कारों के लिए रुके हुए हो You're looking for your life to be transformed? और आप रुके हुए कि आपका जीवन बदल जाए। 4 things you have to commit in your life. और 4 चीजें अपने जीवन में आपको समर्पित करना Lord, है। whatever you teach me, I'm ready to learn and walk on it. परमेश्वर जो भी आप मुझे सिखाओगे मैं तैयार हूँ उस पे चलने के लिए। Number 2, I will have fellowship. दूसरा चीज मैं संगति में रहूंगा। Number 3, I am going to honor your body. और तीसरा चीज मैं आपके देह का आदर करूंगा। And number 4, I commit my life to prayer. चौथा मैं प्रार्थनाओं को मेरा जीवन को समर्पित करूंगा। When you are tight in this 4 situation, और जब ये 4 परिस्थिति में बहुत ही अच्छे से रहोगे the आप, Bible says, बाइबल कहता है the fear of the Lord came upon everyone and they were filled with the fear. और बाइबल का वचन कहता है कि और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रकट प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। When the fear of the Lord comes, जब परमेश्वर का भय आता है miracle happen. चमत्कार होते हैं। So today what do you need for your breakthrough? आज आपको विजय आश्रम के लिए किस चीज की जरूरत है? What do you need for the prayers to be answered? और आपको किसकी प्रार्थना का उत्तर चाहिए? You need the fear of God in your life. आपको परमेश्वर का भय चाहिए आपके जीवन में। You need to walk righteously in your life. आपको धार्मिकता रीति से चलना चाहिए। Don't just do whatever the world is doing. You have to be different. You are in Christ. और जो जगत कर रहा है उसके पीछे मत दौड़िए, वो देखकर मत चलिए, लेकिन आपको अलग रहना है परमेश्वर में। Hallelujah, God. हालेलुया। Commit your life in these 4 things. और ये 4 चीजों पर अपने जीवन को समर्पित कीजिए। And I prophesy, God, भविष्यवाणी in करता Jesus' हूँ name. यीशु मसीह के महान नाम से। Many things in your life will happen. You will not even imagine, but God will get it into your life, sir. और बहुत सारी चीजें जो है आपके जीवन में वो होगा और आपने सोचा भी नहीं होगा, परमेश्वर वो चीजों को करने जा रहा है। Hallelujah, God. हालेलुया। कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है
किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। So church, this is the time that we take part in the communion, in the body and in the blood of Jesus. और कलीसिया इस समय के प्रभु भोज में भाग ले, उस देह और उस प्याले में। I hope everybody has taken the bread and the cup into your hands. और मैं विश्वास करता हूँ कि सभी लोगों ने रोटी और वो प्याला लिया है अपने हाथों में। So this is the time ये समय है that we take the bread और हम रोटी को अपने हाथों में ले, and we are going to pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, in Jesus' name we thank you. और पिता यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते Your हैं। word says, प्रभु आपका वचन कहता है, take, eat, this is my body. लो खा लो, ये मेरा शरीर है And this is the cup of the new और covenant. ये नए वाचे का नया प्याला है। Do this in the remembrance of ये me. मेरे स्मरण में करिए। Yes, Lord, we remember your death, your burial and a resurrection in Jesus' हाँ name. परमेश्वर, हम स्मरण करते हैं आपके मारे जाने, गाड़े जाने, फिर से जी उठने को परमेश्वर। And even as we, Lord, take part, और जैसे हम इसमें भाग भी लेंगे, as we take part in the bread, हम इस रोटी में जैसे हम भाग we are the लेंगे partakers of the grace. और हम अनुग्रह के भागीदारी है परमेश्वर। By your stripes, आपके कोड़े खाने we से are completely healed. हम पूरी तरह चंगे हो चुके हैं। Thank you, Master God. धन्यवाद In परमेश्वर। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन। People only who are water baptized, take the bread and remember the Lord death, burial and resurrection, and you can eat the bread और जो now. लोगों ने सिर्फ पानी का बपतिस्मा लिया है, सिर्फ वो लोग ही परमेश्वर को स्मरण करके सिर्फ वो लोग ही रोटी को खाएंगे। धन्यवाद करते हैं। Even as we are preparing to drink your cup, प्रभु जैसे हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को वाचा का प्याला पीने के लिए, this cup is the cup of new covenant. प्रभु ये प्याला जो है नया वाचे का प्याला है। Father God, this is the blood of Jesus पिता परमेश्वर, ये यीशु मसीह का लहू है that cleanses us from all sins, प्रभु, जो हमें हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है, that heals us, हमें चंगाई that देता है, delivers us, छुटकारा देता है, and that saves us, Lord. हमें जो उद्धार में लाता है। As we take the part, प्रभु जैसे हम उसमें भाग लेंगे, Father, we thank you. पिता धन्यवाद करते As we हैं। drink, जैसे हम उसे we पिएंगे, remember that the blood that you shed on the cross for us. हम स्मरण करते हैं जो लहू आपने हमारे लिए उस क्रूस पर बहाया था। Thank you, Master. धन्यवाद In प्रभु। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन। We can take the cup. हम उस प्याले को ले And सकते drink हैं, उसे हम वो प्याले को हम पिएंगे। I hope everyone who has been water baptized has taken the communion. विश्वास करता हूँ कि जो लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, सभी लोगों ने जो प्रभु भोज को लिया है। Remember 4 things that the Lord has spoken. और 4 चीजों को याद रखना जो परमेश्वर ने कही है। Remember the scripture, Acts. हम प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 42 वचन को हम याद We learned करते it हैं। just now. अभी हमने सीखा, Repeat the 4 things. 4 चीजें को दोहराएंगे, Repeat the 4 things. 4 चीजें को दोहराएंगे। Whatever is written, 1, 2, 3, 4, repeat the 4 और things. जो भी 4 चीजें लिखी है उस 4 चीजों को दोहराएंगे। Number 1, the apostle teaching. पहले प्रेरितों के शिक्षण, Number 2, दूसरा come on church, what is number 2? दूसरा क्या है कलीसिया? First is the apostle teaching. पहले है प्रेरितों का शिक्षण, Number 2 is the fellowship. दूसरा है संगति, Number 3 is the तीसरा breaking of the bread. रोटी तोड़ना, And number 4 चौथा प्रार्थना, is prayer. प्रार्थना। 4 things that is going to change our life forever. और 4 चीजें जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Now it's the time to sow it into the kingdom of God. समय है कि हम परमेश्वर के राज्य में बोए, So whatever you have into your hands, जो भी आपके हाथों में है, your tithes and offering, sow it joyfully.
God loves a cheerful giver. एक दशवांश और भेंट को अपने हाथों में ले लीजिए। परमेश्वर आनंदित देने वाले को बहुत ही पसंद करता है। Even as we hear the worship song, जैसे हम आराधना का जो गीत भी सुनेंगे, get ready God, तैयार हो जाओ to sow it cheerfully और God. आनंदित रीति से उसे बोने के लिए। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है।
So as we have collected the offering, और जैसे हमने भेंटों को इकट्ठा किया come on, है, stretch out your hands. अपने हाथों को आगे I'm going to बढ़ाएंगे pray for your finances. और मैं आपके आर्थिक चीजों के लिए प्रार्थना करूंगा। Father, in Jesus' name, I thank you. और पिता यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। As Lord, we have sown. प्रभु जैसे हमने बोया है, You love a cheerful giver. प्रभु आप आनंदित देने वालों को पसंद करते Father God, हैं। we bless every source of finances. We bless everything in Jesus' mighty प्रभु name. हर एक जगह से प्रभु जो सोर्स ऑफ इनकम में से आशीषित करते हैं परमेश्वर। Father God, you stretch out your hands and bless, प्रभु Lord. आप अपने हाथों को बढ़ाकर आशीषित We कीजिए। pray for new open doors, Lord, to open, the right doors to open for और finances. परमेश्वर प्रार्थना करते हैं सही दरवाजे खुले परमेश्वर। We thank you, Lord, this morning. धन्यवाद प्रभु इस सुबह। You are a gracious God, Lord. आप प्रभु बहुत ही अनुग्रहित परमेश्वर We हो। bless your name. और हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। This morning, let us pray and close. और इस सुबह ये प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। So, Father, we thank you for this wonderful service this morning. पिता परमेश्वर इस सुंदर सभा के लिए हम धन्यवाद करते As हैं। everybody has come this morning for the प्रभु जैसे communion. सभी लोग प्रभु भोज के लिए आए हैं, Father God, bless them, Lord. पिता उन्हें आशीषित कीजिए। We are not going empty, we are going with 4 powerful things that is going to transform our lives. प्रभु हम खाली नहीं जा रहे, लेकिन 4 प्रभु चीजों को लेकर जा रहे जो हमारे जीवन को बदलेगा। The teachings, प्रेरितों के शिक्षण, the fellowship, संगति, the breaking of the bread, रोटी तोड़ना and prayer. और प्रार्थना। These 4 things, Lord, help us, Holy Spirit, to do these things. ये 4 चीजें परमेश्वर हमारी मदद कर प्रभु करने के We लिए। thank you, Lord. धन्यवाद We प्रभु। thank you for everything. धन्यवाद प्रभु हर एक चीजों के लिए। In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Let us all receive our benediction. May the love of the Father and the grace of His Son Jesus Christ and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each one of us now and forevermore. Amen. Praise the Lord, everybody. God bless you all, and stay blessed and continue in the word and in the teachings. May the Lord face shine upon you. God bless you.